I remember when you went there, when you told me that you're in Kargil, my first ever message was take care of yourself. Going by a safety perspective, totally fine. Do they consume social media or YouTube? कन्विंस तो हटा ही दो, इंटरनेट भी वहाँ पे उतना अच्छा नहीं है. But do you think वहाँ के लोग they even interested to know about financial literacy? Like they are even interested to get awareness? Hello and welcome to another exciting episode of Why Not Mint Money, a personal finance podcast. I don't know whether I should introduce myself as a host or as a producer because I keep switching places and roles as per the show requirements. But for today, I have taken over the duties from our wonderful host Aprajita. Thank you, Radhika. Hi Aprajita, how does Hi. it feel to be on the other side of the show? So now I'm quite used to it. In fact, we have done a couple of episodes Yes. together where you have interviewed me. Yes. So yes. yeah, this experience quite nice. Well, I'm really thrilled to host this particular episode because the topic that we're going to talk about is quite crucial and important, which is financial literacy in Kargil. Right. But before we begin to the episode, first tell me it is Kargil or Kargil because I keep on hearing different pronunciations. I'm not even sure. I used to call it Kargil, but when I visited there and then I figured out that it's Kargil. It's not Kargil, it's Kargil. Okay. I remember when you went there, when you told me that you're in Kargil, my first ever message was ki, take care of yourself. Yeah. Be safe. Yes, correct. And my second message was bring some Kumanis from there. I'm not sure if you have gotten some for me or not. We'll have this discussion after the recording. But coming back to the episode, coming back to the topic, tell me first your purpose of visiting to Kargil and your thoughts before going to the place and after coming from the place. So as you mentioned that the moment I told you that I'm going to visit Kargil, then you told me be safe. Similar messages I got from other people also. Okay. So that's the sense. When we hear the word Kargil, then we automatically link it with the war that had happened in 1999. Yeah. So ये होता है कि मतलब करगिल को लेके हमारा परसेप्शन बना हुआ है कि वो जो जगह होगी वहाँ पे थोड़ा अनसेफ होगा, वहाँ पे घूमना फिरना ऐसे डिफिकल्ट होगा और इस तरह का एक बना हुआ है. Restrictions, rules. हाँ, ये सब होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था. वो प्लेस बहुत ही अच्छी थी, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और जैसे आपने खुबानी को मेंशन किया तो वहाँ पे लोगों ने अपने घरों से तोड़ के मुझे खुबानी दी. जो हमें आसपास घुमा रहे थे, जो हमारे ड्राइवर थे, वो हमें अपने घर लेकर के गए. प्रॉपर लंच कराया और उनके घर के अंदर खुबानी का पेड़ लगा हुआ था, हम वो लेकर के आए. तो ये सब था. और व्हाई आई वेंट टू करगिल? So, Department of Information and Public Relations of UT of Kargil, UT of Ladakh, उन्होंने इनवाइट किया था एज अ जर्नलिस्ट टू ट्रेन JNK जर्नलिस्ट. तो वहाँ पे जो करगिल बेस्ड जर्नलिस्ट है उनकी ट्रेनिंग के लिए कि वो कैसे अपनी रिपोर्टिंग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. मुझे लगता है कुछ 30-35-40 जर्नलिस्ट थे वहाँ पे जिनको आपको ट्रेनिंग करना था. और कितने लोग गए थे टोटल? हम 2 लोग गए थे. एक मैं गई थी और मेरे साथ में जामिया के एक प्रोफेसर गए थे. And I think you're the only female there among all the trainees and everyone, all the journalists. All chief guest, everybody was male. मैं एक woman, single one woman. That's army. awesome. That's awesome. Tell me more about the place. Tell me about the infrastructure. What kind of schools and banks you saw there, and what more about people? Just tell me about that. So जब मैं वहाँ जा रही थी, मुझे 2 सेशंस दिए गए थे, both on media की डिजिटल जर्नलिज्म कैसे पैन आउट हो रहा है और रेलेवेंस ऑफ प्रिंट मीडिया इन द एज ऑफ डिजिटल. सो ये सब मेरे टॉपिक्स थे. एक टॉपिक मैंने खुद से ऐड करवा लिया था विच इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर जर्नलिस्ट. कि मैं ये समझना चाहती थी कि वहाँ के जर्नलिस्ट का फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेवल क्या है और उनके थ्रू ही फिर मुझे एक आईना दिख जाता कि वहाँ के लोगों का कैसा है. तो ये आइडिया था. और मतलब मुझे काफ़ी शौक लगा कि बहुत ही कंपेयर टू जैसा जो हमारे यहाँ का सेटअप है वहाँ से भी कम फाइनेंशियल लिटरेसी थी. एंड उनकी फॉल्ट भी इसमें नहीं है क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ ही अलग हैं. जो एक नॉर्मल भी उन्हें अपने वहाँ पे चीज़ें करनी होती हैं, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे आपने बात की तो वहाँ पे कन्वेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जगह सब कुछ बहुत दूर दूर है और ऐसा पब्लिक कन्वेंस ऐसा नहीं है कि हर 5-5 मिनट में आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाने की बस मिल जाएगी. तो वो सब हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं यहाँ पे दिल्ली में. लेकिन वहाँ पे ट्रैवल बहुत मुश्किल है. इसलिए अगर ट्रैवल मुश्किल है, कनेक्टिविटी इश्यूज है, तो वहीं से फिर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बी इट नॉर्मल लाइफ और रिलेटेड टू फाइनेंशियल लाइफ. बट डू यू थिंक वहाँ के लोग they even interested to know about financial literacy, like they are even
interested to get awareness? Do you think so? Awareness और उनकी तो अलग ही मतलब fight अभी. हाँ, अवेयरनेस तो जैसे वहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो खेती बाड़ी में हैं, Okay. वो लोग घर पे उगाएंगे, उसी से अपना उनका खान पान चलेगा, थोड़ा बहुत बेच के, तो उनकी उतनी रिक्वायरमेंट है, उसके बियॉन्ड नहीं है। लेकिन फिर जैसे कुछ जो गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हुए लोग हैं, जो सैलरीड लोग हैं, सैलरीड लोग कम ही है, मतलब काफ़ी लोगों के पास वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो फिर अगर उनकी बात करें तो उनके पास होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा, तो वो मोस्टली रियल एस्टेट में ही लगाते हैं। उसी का अवेयरनेस उनका सबसे ज़्यादा है, मतलब एफडी से ज़्यादा रियल एस्टेट का जमीन खरीदना वहाँ and का other ऐसा aware of the setup है। concepts like mutual funds, SIP and हाँ, तो other यही things. बहुत मेरे लिए शॉकिंग था कि मैंने वहाँ पे पूछा कि व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी, तो अमंग जर्नलिस्ट भी वो लैक ऑफ अवेयरनेस थी। And which age group this was, like the training that you gave? 20 समथिंग, लेट 20s अर्ली 30s, ऐसा अच्छा मतलब मिक्स ऑफ ग्रुप था। मैं अगर जर्नलिस्ट की बात करूँ, वहाँ पे मैंने लोगों से भी बात की, तो उनसे भी मुझे यही समझ में आया कि फाइनेंशियल अवेयरनेस उतनी नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट, इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अभी हमने देखा पोस्ट कोविड कितने सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खुला के, तो वो जो एक पूरी वेव थी वो वहाँ नहीं पहुँची। वहाँ के लोगों का ऐसा कुछ डीमैट अकाउंट्स खोल के रखा हो, ये सब नहीं है। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसका भी अवेयरनेस कुछ नहीं है। वो मैं ही बता के आई कुछ लोगों को कि कैसे क्या करना है, वो उसको कितना फॉलो कर पाते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो मुझे मेजर दिखा कि वहाँ पे म्यूचुअल फंड के ब्रांचेस नहीं है। मतलब बैंक्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली JNK बैंक की मोस्ट पॉपुलर है, और 30-35 ब्रांचेस JNK की ही है। और अगर जैसे एक्सिस बैंक या प्राइवेट बैंक जो है HDFC बैंक, उन सब की एक ब्रांच है। कुछ SBI की भी दिखी मुझे ब्रांचेस वहाँ पे। तो गवर्नमेंट बैंक्स कुछ है, लेकिन JNK ही सबसे ज़्यादा है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे वहाँ नहीं दिखी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे वहाँ नहीं दिखी। अब वाया बैंक हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स सेल होते हों, लेकिन बहुत ही कम। मुझे लगता है कि एकदम नथिंग टू निल सिचुएशन है अबाउट। तो जब आपने उनसे बात करी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो क्या वो और इंटरेस्टेड थे, और वर दे नॉट इंटरेस्टेड, और दे वर हाँ, मतलब कुछ लोगों ने क्यूरियोसिटी दिखाई, लेकिन एक वो फियर फैक्टर बना हुआ। जैसे मुझे किसी ने ये भी बताया, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ भी हुई है। तो एक तरह का थोड़ा मिसट्रस्ट भी है। रियल एस्टेट क्या है कि आप अपनी आंखों के आगे देख रहे हो कि आपने क्या खरीदा, तो उस तरह का झुकाव है। तो मुझे यही समझ में आया कि उस तरह के फाइनेंशियल कैंपेन्स वहाँ पे रन करना और थोड़ा सा इसके बारे में बात करना, मतलब वो एक कटआउट है। जैसे जब स्नोफॉल होता है तो करगिल में 5-6 महीने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। वहाँ पे लोग कुछ टाइम के लिए दे मूव आउट फ्रॉम करगिल टू स्टे एल्सवेयर। तो ये सिचुएशन होती है। I wish मूवीज में अदर साइड ऑफ करगिल भी दिखाया होता। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही, जैसे लोग मोस्टली लेह चले जाते हैं घूमने के लिए, करगिल उतना नहीं जाते, क्योंकि आपको श्रीनगर ड्रॉप करके फिर एक 5-6 आवर्स 7 आवर्स का रोड ड्राइव भी करना पड़ता है। तो उसके बाद भी मैं कहूँगी इतनी सुंदर जगह है, और जिस तरह से वहाँ पे हम लोगों को उन्होंने अटेंड किया, बहुत सारी जगह दिखाई, और बहुत ही सुंदर प्लेस लगी मुझे करगिल। वहाँ के लोग की मुझे स्पेशली आई मस्ट मेंशन कि बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं। जैसे हमको फील होगा उन्हें कि मतलब कुछ ऐसा खतरा तो नहीं, ऐसा कुछ सबने ये चीज़ बोली कि 2003 के बाद से वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बस ये प्रॉब्लम है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे भी स्नोफॉल का जो एक ड्यूरेशन है वो कम हो गई है, तो फिर वो उनका मेल्ट होना भी कम हो गया है, तो पानी का प्रॉब्लम है। बट going by safety perspective, totally fine. Okay. And what do you think the major cause or the major obstacle behind this of lack of awareness? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे क्योंकि आपको वहाँ पे वो खबर पहुँचानी होगी। जब आप वहाँ पे पहुँचाओगे, हाँ ये ऑप्शंस हैं, तभी लोग एक्सप्लोर करेंगे। हर किसी की जर्नी हमने देखा है कि वो FD रियल एस्टेट होने के बाद ही वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे आती है। तो उसके लिए फाइनेंशियल जो ये कंपनीज हैं, BFSI कंपनीज, उनको वहाँ पे रीच आउट करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट कम हो। अब जैसे मैं ये बोलूँ, वहाँ पे जैसे इंश्योरेंस में LIC पॉलिसीज़ वहाँ पे एक पर्सन है वो बेचते हैं, तो वो वहाँ पे फेमस हो चुके हैं, उनको बोलते हैं LIC मंसूर। तो ही इज़ नोन लाइक दैट, मतलब कि क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेच रहे हैं। तो अगर वहाँ पे इंश्योरेंस ओनली वन पर्सन देयर हो सकता है और भी हो, लेकिन वो उन्होंने मे बी फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो, जिसकी वजह से वो इस तरह से उनका नाम ही फेमस हो गया है विद LIC मंसूर। तो अगर वो हो सकता है तो फिर
मतलब कि कोई निफ्टी 50 मंसूर क्यों नहीं मतलब जो इंडेक्स फंड की बात करें नहीं, पर मुझे उस दौरान मौका नहीं मिला क्योंकि टाइम कम था, लेकिन मैंने उनका नंबर लिया है और मतलब आई एम श्योर आई विल बी टॉकिंग टू हिम. सो areas like Kargil or any remote areas, community plays an important role. What do you think when it comes to community? Will अगर वहाँ पे community strong हो जाएगी, will it increase this? Will it bridge the gap of financial literacy? तो वहाँ पे already strong है. जो community living की जो हम बात करते हैं, लोगों का एक दूसरे पे dependence और एक दूसरे पे support, trust, तो वो चीज़ तो मुझे काफ़ी हद तक दिखी. अगर मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करूँगी कि करगिल में एक ही हिंदू फैमिली है, मतलब ओनली वन सिंगल हिंदू फैमिली लिविंग देयर सिंस एजेस, मतलब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर वहाँ पे रहते आ रहे, जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग वहीं पे रहे हैं. तो वो होशियारपुर से हैं और उनका FMCG का बिजनेस है, तो उनकी वहाँ पे शॉप थी और मैं स्पेशली उनसे मिलने के लिए भी गई थी उस फैमिली से. तो वहाँ पे उनके फादर और उनके बेटे, मेरी दोनों से बातचीत हुई. तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि उनको भी वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता एक अलग रिलीजन को बिलोंग करते हुए भी. तो बहुत ही वेलकमिंग, जैसा मैंने आपको बोला कि तो इसलिए उनको भी, वो भी आराम से वहाँ पे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, एजुकेशन वगैरह की अगर हम बात करें तो आफ्टर 8th क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास वो उतनी स्ट्रांग नहीं है. तो मोस्टली जो फैमिलीज है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं या फिर चंडीगढ़ भेज देते हैं. इस तरह का सिनेरियो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया. बट अदरवाइज जो स्कूल की एजुकेशन है वो सब नॉर्मल, और उस फैमिली के लिए भी हमेशा से सब कुछ नॉर्मल रहा. और एक चीज़ जो वहाँ पे करगिल के लिए मैं बताना चाहूँगी कि करगिल वहाँ पे लोगों को टैक्स नहीं देना होता. जैसे हम अपना ITR फाइल करते हैं, सिक्किम में भी ये चीज़ है और करगिल में भी ये चीज़ है कि लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता है. तो फिर लेकिन अभी जब आर्टिकल 370 के बाद से अभी वहाँ पे ये सिचुएशन है कि जिनके पास ST सर्टिफिकेट नहीं है, मोस्टली वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, जिनके पास वो ST सर्टिफिकेट नहीं है उनको टैक्स भरना पड़ता है. तो अभी ये जो हिंदू फैमिली है वो उनके पास ये नहीं है, तो वो वहाँ पे टैक्स भरते हैं. बट मोस्टली वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, तो एक वहाँ पे उनको एग्जेम्पशन है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स नहीं देना है, कि जैसे आपकी जो भी लाइफ है आपका उतना ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं है. तो वो एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे. And in terms of source of information, what did you notice there? What is their source of information? First source of information. तो अगर मैं जर्नलिस्ट से जैसे मैंने बात की, तो डिजिटल जर्नलिज्म तो वहाँ पे काफ़ी है. लोगों ने अपना YouTube चैनल भी बनाया हुआ है, मतलब जर्नलिस्ट ने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है, वो सब कुछ अपना कर रहे हैं. लेकिन वहाँ पे क्योंकि मैन पावर एक बोल सकते हैं और उसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी इश्यूज़ है, तो उसकी वजह से जर्नलिज्म उतना ज़्यादा नहीं पनप पाया है. तो मोस्टली वो डिपेंडेंट है टॉप डाउन, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से उनके पास न्यूज़ जाएगी, मोस्टली वो दिखाई जाती है. मोस्टली इवेंट रिलेटेड कवरेज ऐसा दिखाया गया है. तो एक जो क्वालिटी कवरेज है वो बहुत ही कम जर्नलिस्ट अभी कर पा रहे हैं. और वो भी कैसे हो पा रहा है, जब वो नेशनल मीडिया के साथ टाई अप करते हैं. सो मे बी करगिल बेस्ड जर्नलिस्ट क्रिएटिंग अ शूट फॉर any TV channel or maybe writing for any national media website or newspaper. अभी तक ये नहीं है वहाँ पे. ये चीज़ थोड़ा कुछ लेवल पे होना शुरू हो गई है. I think that's why you went there and gave training. इसीलिए उन्होंने हमें भी बुलाया कि एक नेशनल पर्सपेक्टिव उनको मिले कि और कैसे मीडिया काम करता है. तो पहले तो मीडिया को ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी फिर वहाँ लोगों तक बात पहुँचेगी. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे वहाँ दिखी जिसके बारे में मुझे लगा कि उन जर्नलिस्ट को लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि नेशनल लेवल पे वो बात सामने आए. But in terms of people, do they consume social media or YouTube, Insta? Did you notice anything? हाँ, वहाँ पे मैंने पूछा कि ये Netflix और Amazon Prime इन सब का क्या ट्रेंड है, तो वो सब उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं है. और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे एक विलेज में गई थी, वो एकदम बॉर्डर पे वो विलेज है. उसके बियॉन्ड फिर पाकिस्तान है. तो मतलब उन्होंने वहाँ पे हमें दूरबीन से दिखाया भी, और वहाँ पे मुझे पाकिस्तान के 4-5 लोग दिखाई दे रहे थे जब मैं उसको दूरबीन से देख रही थी. तो वो एकदम फार एंड पे है वो विलेज. अब वहाँ पे जो एक रेजिडेंट थे, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे करगिल में पढ़ते हैं स्कूल में, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल अभी ऑनलाइन हो चुका है. या तो उस स्पेशली पोस्ट कोविड. हाँ, पोस्ट कोविड. तो स्पेशली उस गांव में कनेक्टिविटी इश्यूज है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज. कन्वेंस तो हटा ही दो, इंटरनेट भी वहाँ पे उतना अच्छा नहीं है. तो फिर वो बोलते हैं कि अब इससे मेरे बच्चों की जो एजुकेशन है वो सफ़र करती है कि अब मुझे
पहले उनको लेके नीचे ही मतलब करगिल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे इंटरनेट आएगा, तो वो उस तरह से पढ़ सकते हैं। तो एक कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे लैक ऑफ इंटरनेट की वजह से थोड़ा एजुकेशन पे या फिर किसी भी तरह के कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम आती है। प्लस लोगों ने मुझे वहाँ ये भी बताया कि उतना रीडिंग कम हो गई है वहाँ पे। तो फिर अगर रीडिंग कम हो गई है तो फिर हमें विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। आर देयर एनी प्रोग्राम्स रनिंग फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, एनी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स? मैंने एक JNK बैंक ऑफिशियल से भी बात की थी, तो वो कह रहे थे कि इस तरह के जो कैंपेन्स हैं वो हमें रन करने ही होते हैं, तो वो किए जाते हैं, लेकिन वो उतने भी बड़े लेवल पे नहीं होते या उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है। सेम रीज़न, क्योंकि लोगों का झुकाव थोड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे है, तो लोग लोन लेके भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर खरीदना, ये सब, तो वो सब कुछ है। So definitely the financial literacy is quite poor and important there. Of course, people should read more about it. Correct. Any top tips for the people out there in Kargil कि उनको क्या करना चाहिए सबसे, how they should start, the first 3 basics if you have to suggest? हाँ, तो जैसे मैं वहाँ पे सबको बता के आई, और मैं हर किसी को जिसको भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करना होता है उनको मैं यही कहती हूँ कि आपकी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है निफ्टी इंडेक्स फंड बाय करने का। तो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट मौजूद थे और मैंने अपने उस सेशन में, फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन में, उनको यही समझाया कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप खरीदिए और उसमें हर मंथ SIP करिए, जो भी थोड़ा बहुत आप बचा सकते हैं। वो दे अवेयर ऑफ द कांसेप्ट निफ्टी? वो नहीं अवेयर थे इस कांसेप्ट वुड लाइक टू एक्सप्लेन अगेन, अगर करगिल पीपल देख रहे हैं तो आई थिंक वो दोबारा से बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इंडिया में जैसे जो हमारा स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को लेके हमारा एक परसेप्शन होता है कि ये गैम्बलिंग है। मतलब स्टॉक मार्केट में रहता है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स, लेकिन कुछ भी नहीं है कॉम्प्लेक्स है जो अगर आपको उतना अंदर जाके करना है, मोटा मोटा जो आपको समझना है और जो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो जो मैं प्रोडक्ट बताती हूँ इसमें कमीशन बहुत ही कम होता है। अब कमीशन कम है तो क्यों कोई बताएगा, क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे सोर्सेज ढूंढने होते हैं कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालनी है, तो वो प्रॉब्लम है। अब जैसे अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि निफ्टी एक हमारा एक इंडेक्स है इंडिया के स्टॉक मार्केट का, जिसमें 50 कंपनीज लिस्टेड है। अब इन 50 कंपनीज में क्या होता है कि अगर कोई भी 2 या 3 कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो ये इंडेक्स अपडेट होता रहता है। तो वो हट जाती है और अच्छी कंपनीज ऐड हो जाती है, तो ये 50 कंपनीज में मूव होती रहती हैं। जो इन 50 में जो टॉप वंस हैं, लाइक रिलायंस, HDFC बैंक हो गया, HUL हो गया, वो तो मोरलेस उतना ही रहता है, लेकिन नीचे से कुछ कंपनीज आती जाती रहती है। तो अगर आपका पैसा इन 50 कंपनीज में जा रहा है एवरी मंथ, अगर आप रिलीजियसली इसमें डाल रहे हो, तो आपकी लॉस होने के चांसेस उतने नहीं रहते। बस आपको पेशेंस रखना है। अभी जैसे कल मार्केट इतना ज़्यादा डीप फॉल आया, अब उस दिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो लॉस में हूँ, लेकिन उससे डरना नहीं है। जिस दिन लॉस होता है उसी दिन आपको थोड़ा और डालना है। ये एक तरह का डिस्काउंट है। हम कपड़ों का डिस्काउंट देख के तो 50% ऑफ पे चले जाते हैं, तो ये जो क्रैश वाले दिन होते हैं ना, वो भी डिस्काउंटेड डेज होते हैं कि आपका इतना क्रैश आया, इतने % आपको डिस्काउंट मिल रहा है टू इन्वेस्ट। सो उस एंगल से हमको देखना चाहिए। एग्जैक्टली जिस दिन मार्केट क्रैश हो रहा है उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये एडवाइस है मेरी कि, और आप इसको डे इन डे आउट, जो भी आपका मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर फोर्टनाइटली कर सकते हो, या जैसा भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, आइडियली मंथली होना चाहिए। तो वो आप इसमें अगर करते रहेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो एक आप अच्छा चंक इन्वेस्ट करते करते आप जोड़ लेंगे, सेविंग्स हो जाएगी, प्लस उसमें अच्छा खासा आपको रेट मिलेगा जो आपको रियल एस्टेट में या फिर FD में शायद ना भी मिले। ऐसा नहीं है कि आपको FD रियल एस्टेट नहीं करना है, लेकिन इसको भी ट्राई करना है। ये चीज़ है, डाइवर्सिफाई करना है कि आप इंडिया में एक इंडिया का हिस्सा हो, तो आपको इस इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उस एंगल से मेरा सजेशन रहता है कि इस प्रोडक्ट में सबका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, इसके अलावा फिर और भी स्टॉक मार्केट के अदर म्यूचुअल फंड्स जो हैं जिसमें पैसा जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसी तरह और भी फंड्स हैं जो आपको और कंपनीज में, वुमेन है जो आई एम श्योर हमारे पुराने ट्रेडिशनल वेज यूज कर रही होंगी, यू नो, बेड के नीचे ऐसे पैसे रख देना या वो सब, तो उनके लिए सबसे इजी तरीका क्या होगा टू इन्वेस्ट? कुछ भी उनके लिए तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने तो बेड में ही रखा हो, उन्होंने तो FD तक नहीं किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप तो उनके लिए भी FD होना चाहिए। लेकिन अगर
अब जैसे ऑब्वियसली अगर वहाँ पे मेल्स ही उतने लिटरेट नहीं है अबाउट फाइनेंसेस, तो फिर विमेन की लिटरेसी और कम है, और मोस्टली वो डिपेंडेंट होंगे मे बी अपने घर के हस्बैंड्स पे, फादर्स पे, तो अनलेस वो उनको ये अवेयरनेस नहीं देंगे शायद उनके पास नहीं पहुँचेगी। अदरवाइज जो मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ ये तो everyone should give it a try, और जरूर से जरूर। And अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो do reach out to Aprajita. She will help us and everyone in fact to understand more about all these concepts. कोई भी queries है you can drop those in the comments below. We'll attach your Insta. हाँ, आप मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी डाल सकते हैं। I reply to all my DMs. And before Aprajita, I let you go. Any top 3 book recommendations or any top recommendations? आप क्या पढ़ते हो? लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? Especially for mere mortals like me, what should I read? तो बुक्स तो फाइनेंस पे बहुत सारी अच्छी अच्छी लिखी गई है, मतलब अगर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, जैसे स्टॉक मार्केट पे तो और भी ज़्यादा लिखी गई है, लेकिन मैं पर्सनल फाइनेंस की बात करती हूँ क्योंकि वो उसमें पूरा फैमिली फाइनेंस, एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग आती है। स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो अगर उसकी बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मेरी अपनी बुक पढ़िए, उसका लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, द लास्ट स्ट्रीट, वो मैंने को ऑथर की अलॉन्ग विद नील बुराटे एंड आदित्य कुंडा, तो ये बुक तो ज़रूर पढ़िए। नाम है बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। इसके अलावा लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हलन, उन्होंने भी मिंट में काम किया हुआ है काफ़ी टाइम तक, तो लेट्स टॉक मनी बाय हर, ये बुक भी बहुत ही अच्छी है और आपको फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है एक फैमिली को, तो उसके बारे में बात करती है। ये बुक भी एक मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। इसके अलावा फिर अगर थोड़ा सा बिहेवियरल, इन्वेस्टमेंट्स में बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत काम करता है, तो एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इसके अलावा फिर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेशनल बुक कि आपको कुछ लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा अगर आपको ऐसे समझना है तो ये at least start with these 3 books. Also, you can maybe watch our listen to our podcast. Why not Mint Money? Correct. You should listen to our podcast and you should keep reading our stories also, which we do for Mint newspaper. अगर आप वो भी रोज पढ़ेंगे तो आपका financial knowledge काफी improve होगा. Yeah. Well, thank you, Aprajita. It was a lovely, lovely conversation. Got to know so much about Kargil as a place and about the people. And I think if everyone who is watching from Kargil or anyone, and you have just started your journey, then don't worry. We are here, Aprajita and everyone from Why Not Mint Money team is here to help you. And I think you should start with basics, and then there should be no stopping by. Correct. Thank you, Aprajita. Thank you. Nice. Very nice talking to you today.